एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब कि इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक से एक्सट्रैक्ट, मतलब उसकी समरी है ये, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट है ये। तो ये चाहे जो 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल साइंसेस में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद जो मतलब कि लाइफ साइंसेस के रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से सुने। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। Kingdom Plantae includes all multicellular eukaryotic photosynthetic organisms. In traditional system of classification, as per ईचलर 1883 की जो ईचलर की क्लासिफिकेशन थी, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, क्रिप्टोगैमी एंड फेनिरोगैमी, ठीक है, ईचलर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्रिप्टोगेम्स विदाउट मीन्स प्लांट विदाउट सीड्स इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। फेनिरोगेम्स विच आर विद सीड्स, ठीक है, दीज फेनिरोगेम्स इंक्लूड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। Next is cytotaxonomy. Cytotaxonomy is based on information provided by comparative cytological studies, number of chromosomes, structure and meiotic behavior of chromosomes, ठीक है। Then chemotaxonomy, it means biochemical systematics, ठीक है। हाँ, chemotaxonomy which is biochemical systematics, it is based on characteristics of various chemical constituents of organisms like amino acids, proteins, DNA sequences, alkaloids, crystals, beta cyanins, etc, ठीक है। Then numerical taxonomy, it evaluates resemblances and differences or primitiveness and advancement through statistical methods, ठीक है। Now अब हम देखते हैं एल्गी के बारे में। Algae are chlorophyll-bearing simple thalloid avascular plants. They are usually aquatic and a few algae occur in moist terrestrial habitats. Vegetative reproduction in algae is by fragmentation. Asexual reproduction is by production of different kinds of spore, most common being zoospore, which are flagellated and give rise to new plants on germination. Sexual reproduction in fungi may involve isogamy, for example in Spirogyra, anisogamy as in Chlamydomonas, and oogamy as in Volvox in different groups, ठीक है। Sex organs when present are non-jacketed and one-celled called gametangia, ठीक है, algae के केस में non-jacketed होते हैं। Then algae are photosynthetic. They fix carbon dioxide and increase level of oxygen in their immediate environment. A number of algae are edible and are commercially available as food sources. For example, chlorella. ठीक है ना। Then agar, which is a complex polysaccharide, means phycocolloid. It is extracted from certain species of red algae belonging to genera Gelidium and Gracilaria, ठीक है। हाँ, ये अगर then certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids which are water holding substances, many of them, ठीक है ना। for example algin, ALGIN, algin जो कि ब्राउन algae से है, and सीराजीनिन, CARRAGEENIN, carrageenan, ठीक है, from red algae are used commercially. Three main classes of algae are chlorophyceae, rhodophyceae and phaeophyceae, ठीक है। अब जो तीन क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी, इनके कुछ इनके फीचर्स देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो क्लोरोफाइसी है, इसमें क्लोरोफिल ए बी होता है, जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च होता है, सेल वाल जो है सेल्यूलोज की बनती है, फ्लैजिला और उसकी एंड इट्स पोजीशन वो होती है जी 2-8 होते हैं, ठीक है ना, इक्वल और एपिकल होते हैं। तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर होती हैं। एग्जांपल हैं क्लोरोफाइसी की यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा एटसेट्रा, ठीक है। तो
ये हम ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होता है और साथ में फ्यूकोजेंथिन भी होता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोरिथ्रिन होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड देखें तो क्लोरोफाइसी में आ गया स्टार्च, फियोफाइसी में आ गया मैनिटोल और लेमिनेरिन, ठीक है, इस ब्राउन अलगी में, और रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। देन सेल वाल देखते हैं, क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की बनी होती है, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है, और रोडोफाइसिस में सेलुलोज की भी, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है सेल वाल। देन फ्लैजिला और उसकी पोजीशन देखिए, अगर हम क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वल और एपिकल होते हैं। फ्यूफाइसी में सिर्फ 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं, और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। हैबिटेट अगर देखें, क्लोरोफाइसी जो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में होती है। फियोफाइसी जो है ये फ्रेश वाटर रेयर केसेस में होती है, बाकी रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में होती है। और रोडोफाइसी जो है ये फ्रेश वाटर भी होती है कुछ, और ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर होती हैं, ज़्यादातर साल्ट वाटर में होती है ये रोडोफाइसी, ठीक है। देन अगर एग्जांपल देखें, क्लोरोफाइसी की एग्जांपल आ गई यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की एग्जांपल है। देन फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी, उसकी एग्जांपल आ गई डिक्टियोटा और सरगेसम, ठीक है। और रोडोफाइसी रेड एल्गी की एग्जांपल आ गई ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं ब्रायोफाइट की तरफ, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विच लिव्स एज अ पैरासाइट ऑन एन इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। These bryophytes are called amphibians of plant kingdom as they require an external layer of water for dehiscence of antheridia, swimming of male gametes to reach archegonia, protection from transpiration and desiccation as the plant body is not covered by cuticle and supply of water to all parts through capillarity in the absence of vascular tissues, ठीक है। ब्रायोफाइट का पढ़ना, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक एंड थैलाइट, इट लैक्स 2 रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, बट दे में पोजेस रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, देन इन ब्रायोफाइट्स द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, एल्गी में नॉन जैकेटेड थे ना, ब्रायोफाइट में जैकेटेड हैं, ठीक है। Then the male sex organ is called antheridium which produces flagellate male gametes and called antherozytes, ठीक है। The female sex organ called archegonium is flask shaped and produces a single egg, ठीक है। Then fertilization in bryophyte, ठीक है। Fertilization occurs with the agency of water. The antherozoites are released into water where they swim and come in contact with archegonium. An antherozoid enter archegonium, fuses with the egg to produce the zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. Reduction division मतलब meiosis, ठीक है। They produce ऐसे ये नहीं होती है, reduction division फौरी तौर पर नहीं होती है, ठीक है, zygote में। They produce a multicellular body called a sporophyte, ठीक है। The cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis, ठीक है, ठीक है। जो जाइगोट में जो है डायरेक्ट meiosis नहीं होती है, रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। इसमें से एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और उस स्पोरोफाइट के जो सेल्स होते हैं उनमें ये रिडक्शन डिवीजन meiosis होती है, एंड हाँ, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और दीज हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ऐसे साइकिल चलती है इनकी, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हो गया, ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉइड। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 3 मेजर क्लासेस आ गई, हिपैटिकोप्सिडा, एंथीरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, ठीक है ना। अब इनके फीचर्स देखते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली देखेंगे। जो पहली क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, इनका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, कॉमन नेम हिपैटिकोप्सिडा का लिवरवर्ट्स है, एंथीरोटोप्सिडा का हॉर्नवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा का मासिस, ठीक है। हाँ, तो अब कंबाइन फीचर्स हम देखें तो कॉमन नेम तो हो गया। फिर अगर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अगर देखें, हिपैटिकोप्सिडा में ये होती है, इट में भी थैलोस और फोलियोस यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं। एंथीरोटोप्सिडा में थैलोस यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं, ठीक है। और ब्रायोप्सिडा में थैलाइड प्रोटोनीमा एंड लीफी गैमेटोफोर मल्टी सेलुलर राइजाइड्स विद ओब्लिक सेप्टा, ठीक है, ये होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर राइजाइड्स होते हैं, ठीक है।
ब्रायोप्सिडा में, बाकी लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में यूनिसेलुलर रह जाते, ठीक है। देन सेक्स ऑर्गन्स देखें, हिपेटिकोप्सिडा में जो होता है वो उसमें दीज सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डार्सल साइड ऑफ थैलस, डार्सल सरफेस ऑफ थैलस। एंथीरोटोप्सिडा में जो है सेक्स ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट ऑन डार्सल सरफेस ऑफ थैलस, दोनों में सेम। देन इन ब्रायोप्सिडा सेक्स ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम दी सुपरफिशियल सेल्स एट द अपेक्स ऑफ लीफी गैमेटोफोर, ठीक है ना। देन अब हम स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेपेटिकोप्सिडा में स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एंथीरोटोप्सिडा में स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट देन शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड कैप्सूल, ठीक है। हेपेटिकोप्सिडा में फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और एंथीरोटोप्सिडा में फुट देन शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड देन कैप्सूल, ठीक है। और ब्रायोप्सिडा में जो है स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, जैसा है कि लिवरवर्ट्स में था, ठीक है। देन इलेटर्स देखते हैं, इलेटर्स, ठीक है, ELATERS, इलेटर्स हिपेटिकोप्सिडा में जो देखें तो उसमें जनरली दीज इलेटर्स आर प्रेजेंट बट एब्सेंट इन सम केसेस लाइक इन रिक्शा। रिक्शा हिपेटिकोप्सिडा से है लेकिन इसमें इलेटर्स नहीं होते हैं, बाकियों में होते हैं, ठीक है। एंथीरोटोप्सिडा में देखें तो उसमें स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल, ठीक है, स्यूडो इलेटर्स हॉर्नवर्ट्स में, ठीक है। देन ब्रायोप्सिडा में देखें तो उसमें इलेटर्स जो हैं एब्सेंट होते हैं ब्रायोप्सिडा में, ठीक है। देन स्पोरोजिनस टिश्यू देखते हैं, ठीक है। हिपेटिकोप्सिडा में स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोथीशियम, ठीक है। एंथीरोटोप्सिडा में दिस स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीशियम एंड एंडोथीशियम, हाँ, डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीशियम एंड एंडोथीशियम फॉर्म स्टीराइल कॉल्यूमिला, ठीक है। कि जो एंथीरोटोप्सिडा है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एम्फीथीशियम से आता है, और जो एंथीरोटोप्सिडा में एंडोथीशियम है ये स्टीराइल कॉल्यूमिला बनाता है, ठीक है। उस हिपेटिकोप्सिडा में देखा था उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एंडोथीशियम से आता है। अच्छा, ब्रायोप्सिडा के केस में देखें तो इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इट डेवलप्स फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम, इनर लेयर फॉर्म्स स्टीराइल कॉल्यूमिला, ठीक है। देन अगर हम डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल देखें तो हिपेटिकोप्सिडा में ये इरेगुलर होती है, हॉर्नवर्ट्स या एंथीरोटोप्सिडा में भी इरेगुलर, लेकिन ब्रायोप्सिडा में डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल जो है रेगुलर तरीके से होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। हिपेटिकोप्सिडा की एग्जांपल्स आ गई रिक्शिया, मार्केंशिया, स्फेरोकार्पस, ठीक है, एटसेट्रा। एंथीरोटोप्सिडा की एंथोसिरोटोप्सिडा, मैंने गलत से एंथ्रोटोप्सिडा बोलते हैं, ये एंथोसिरोटोप्सिडा, ठीक है। एंथोसिरोटोप्सिडा या हॉर्नवर्ट की एग्जांपल आ गई एंथोसिरोस, देन नोटोथाइलस एंड मेगासिरस, ठीक है। ब्रायोप्सिडा की एग्जांपल आ गई स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फुनेरिया, ठीक है। तो ब्रायोफाइट फिनिश हो गया। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट, ठीक है ना। टेरिडोफाइट्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक वास्कुलर प्लांट्स मींस ट्रैक्योफाइट्स, दीज आर ट्रैक्योफाइट्स, वास्कुलर प्लांट्स इनको ट्रैक्योफाइट्स बोलेंगे, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट्स आर ट्रैक्योफाइट्स, ठीक है। तो दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक एंड वास्कुलर प्लांट्स मींस ट्रैक्योफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हैव वास्कुलर सिस्टम मींस जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम इनमें होता है, लेकिन इन जाइलम द ट्रू वेसल्स आर एब्सेंट, ठीक है। हाँ, इन फ्लोएम कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, ठीक है, इंस्टेड सीव सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। टेरिडोफाइट में जाइलम फ्लोएम होता है लेकिन जाइलम में ट्रू वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स नहीं होती हैं, लेकिन सीव सेल्स होते हैं फ्लोएम में, ठीक है। देन टेरिडोफाइट्स का पार्ट है द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स में बी स्मॉल मीन्स माइक्रोफिल्स एज इन सेल्जिनीला, और the leaves may be large, that is macrophyll as in most of ferns, ठीक है। plant body is a sporophyte differentiated into true root, stem and leaves, टेरिडोफाइट, ठीक है। देन टेरिडोफाइट में डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, दूसरे केस में ये थी गैमेटोफाइट, ठीक है। देन द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक appendages called sporophylls. The sporangia produces spores by meiosis in spore mother cells, ठीक है। Then the sporophylls may be widely scattered on a plant or may be clustered in definite areas and structures called cones or strobili, ठीक है ना।
फॉर एग्जांपल इन सेल्जिनीला और इक्विसिटा में होता है ये कौन सी है, स्ट्रोबली, ठीक है। देन स्पोर्स में भी सिमिलर, दैट इज होमोस्पोरस एज इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, फॉर एग्जांपल टेरिस, एडियंटम एटसेट्रा, ठीक है। इनमें होमोस्पोरस होते हैं, या फिर कुछ में हेट्रोस्पोरस होते हैं स्पोर्स, जैसे कि मीन्स दो किस्म के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ठीक है, हेट्रोस्पोरस में। एग्जांपल आ गई इसकी हेट्रोस्पोरस की, सेल्जिनीला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया, ठीक है। The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus, ठीक है। The gametophyte bears multicellular and jacketed sex organs, antheridia and archegonia, ठीक है, jacketed होते हैं, ठीक है, और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट में होते हैं, जिनको बोलते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। फर्टिलाइजेशन इन ऑल केसेस इज accompanied by the agency of water. The fusion of a flagellated male gamete and an egg restores the diploid chromosome number and results in the formation of the zygote, ठीक है। The zygote undergoes repeated divisions to form a new sporophyte, ठीक है, which is dominant phase of pteridophyte, ठीक है। हाँ, then zygote undergoes repeated divisions to form a new sporophyte, which is dominant phase of pteridophyte, ठीक है। Pteridophytes can be classified into 4 classes, that is Psilopsida, जिसकी एग्जांपल आ गई साइलोटम, PSILOP SID साइलोप्सिडा, जिसकी एग्जांपल आ गई साइलोटम, PSILOT साइलोटम। देन सेकंड क्लास आ गई लाइकोप्सिडा, ठीक है, जिसकी एग्जांपल आ गई लाइकोपोडियम, सेल्जिनीला, ठीक है, ये लाइकोप्सिडा में आते हैं। थर्ड क्लास इज स्फेनोप्सिडा, जिसकी एग्जांपल आ गई इक्विसिटम, स्फेनोप्सिडा, ठीक है। एंड फोर्थ इज टेरोप्सिडा, जिसकी एग्जांपल आ गई ड्रायोप्टेरिस और टेरिस, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है, किसके, टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। देन द डेवलपमेंट ऑफ zygotes into young embryos in case of heterosporous ones takes place within female gametophyte, ठीक है। This event is a precursor to the seed habit considered which is considered an important step in evolution, ठीक है ना। नाउ अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। The gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. The seeds that develop post fertilization are not covered, means they are naked, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के केस में। देन जिम्नोस्पर्म के केस में, ठीक है ना, plants in gymnospermic plants possess tap root system, but in some forms coralloid roots और माइकोराइजा में भी प्रेजेंट, ठीक है। कोरालाइड रूट्स होते हैं, रूट्स हैविंग एंडोसिम्बियाटिक, हाँ, कोरालाइड रूट्स आर द रूट्स हैविंग एंडोसिम्बियाटिक विद ब्लू ग्रीन एल्गी, फॉर एग्जांपल साइकस में कोरालाइड रूट्स होती हैं, या फिर कुछ में माइकोराइजा रूट्स भी होते हैं, जैसे पाइनस में, ठीक है। Then the stems are aerial, erect, woody, branched, for example in Pinus cedrus, ठीक है, or unbranched stems are there, for example in Cycas and Zamia, ठीक है। Then leaves are usually dimorphic, means leaves are of 2 types, large green foliage leaves and small brown scale leaves, ठीक है, तो dimorphic leaves होते हैं, foliage leaves और scale leaves. Then xylem does not, gymnosperms में, ठीक है, xylem does not possess vessels except in some gnetophytes, GNETO gnetophytes, ठीक है। phloem is without companion cells and sieve tubes, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी कोई companion cells और sieve tubes नहीं होते हैं phloem में। sieve cells are not arranged end to end in rows, ठीक है, हाँ। Then vascular tissues are arranged into vascular bundles. Vascular bundles of stem are open. Open vascular bundles mean they have cambium, ठीक है। Vascular bundles of stem are open means with cambium, so that scanty growth is quite common, ठीक है, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। Then the gymnosperms are heterosporous, means they produce haploid microspores and megaspores, ठीक है। The 2 kinds of spore are produced within sporangia, they are borne on
that are born on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact strobili or cones. ठीक है. Two types of sporophylls, that is microsporophylls and megasporophylls, are usually aggregated to form distinct cones or strobili. ठीक है. Pollen cones means male cones and seed cones means female cones respectively. ठीक है. Then the microspores develop into a male gametophytic generation. The microspores develop into a male gametophytic generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells and completely emerges out from the microspore. This reduced gametophyte is called a pollen grain. Ovules are naked and are born on the megasporophylls. Each ovule has a mass of tissue called a nucellus, which is equivalent to megasporangium. ठीक है. Each ovule has a mass of tissue called nucellus, which is equivalent to megasporangium. ठीक है. A megaspore mother cell develops in it. ठीक है. megasporangium. Then during pollination, pollen grains means microspores are directly carried by wind to the micropyle of the ovule. Therefore only anemophily occurs. ठीक है. means wind के जरिए. A pollen tube is formed for effecting fertilization means siphonogamy होता है. ठीक है. pollen tube बनती है. At the time of fertilization, nuclei of male and female gametes fuse and result in the formation of a zygote. Zygotes develop into an embryo. Then polyembryony, that is development of several embryos in one seed, out of which only one survives, and this polyembryony is of common occurrence in Pinus, which is a gymnosperm. ठीक है. polyembryony. The number of cotyledons in a gymnosperms may be 1 or 2. For example, cycas, CYCAS, cycas एक gymnosperm है. ठीक है ना. Or the number of cotyledons may be a whorl of many. For example, in Pinus. ठीक है. Endosperm is gametophytic means always haploid. ठीक है. endosperm. Then gymnosperms are divided into 4 groups. ठीक है. Cycadopsida, for example, cycas. Then Gingopsida, for example, Ginkgo biloba, which is a fossil, living fossil. Then Coniphyropsida, for example, in Pinus, and Gnetopsida, for example, in Gnetum. ठीक है. जिम्नोस्पर्म के 4 ग्रुप्स हैं. Cycadopsida, for example, cycas. Ginkgopsida, for example, Ginkgo biloba, which is a living fossil. Then Coniphyropsida, for example, Pinus, and Gnetopsida, for example, Gnetum. ठीक है. Next is angiosperms. ठीक है. Angiosperms are those seed plants in which seeds are formed inside fruits and the microphyls are organized into flowers. ठीक है. Angiosperms are the most recently and highly evolved plants. Xylem contains vessels. Phloem possess sieve tubes and companion cells. ठीक है. Then secondary growth occurs in stem and root of some angiosperms placed in group dicots. ठीक है. तो अभी हम जो है एंजियोस्पर्म स्टार्ट कर लिए, वो पढ़ रहे हैं. ठीक है. देन स्पोरोफिल्स आर हाईली, एंजियोस्पर्म्स में. ठीक है. स्पोरोफिल्स आर हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स. A microsporophyll or stamen consist of a filament and an anther. The megasporophyll or carpel consist of a stigma, style, and ovary containing ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophytes known as embryo sacs, which are 7-celled 8-nucleate structures. ठीक है. कौन? embryo sacs. ठीक है. Embryo sac formation is preceded by meiosis, so all the cells are haploid. Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, जिसमें आ गया 1 egg cell, 2 synergids and 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. ठीक है. तो ये जो है तो हाँ, each embryo sac has a 3-celled egg apparatus. ठीक है. हाँ, उसमें 1 egg cell and 2 synergids, then 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. ठीक है.
The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Pollen grains or microspores reach stigmatic surface found at the tip of carpel or megasporophyll. They germinate on the stigma, and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule. After the pollen tube reaches the embryo sac, its tip dissolves and the male gametes are liberated. Of the two male gametes, one fuses with the egg cell of the embryo sac, means syngamy. ठीक है, this is called syngamy. When one of the egg fuses with egg cell of embryo sac, this is syngamy, while the other male gamete fuses with the secondary nucleus, which is called process is called triple fusion. And this is called double fertilization as a whole. ठीक है ना, which is unique to angiosperms. ठीक है, तो angiosperm का एक unique feature है double fertilization. ठीक है, then the synergids and antipodal cells disintegrate after fertilization. ठीक है, fertilization के बाद synergids और antipodal disintegrate कर देते हैं. Product of triple fusion is endosperm, which is a triplet structure, means 3N. ठीक है, endosperm provides nourishment to the developing embryo. The angiosperms are divided into two classes, that is dicotyledony and monocotyledony. ठीक है, angiosperms are divided into two classes, dicotyledony and monocotyledony. ठीक है ना. Now plant life cycles and alternation of generations. ठीक है, plant life cycle and alternation of generation. ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. तो इसमें जो आ गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आ गया. ठीक है ना, तो पहला आ गया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो इसमें आ गया कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड zygote. There are no free living sporophytes. Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. 3 of them may degenerate in some cases. All 4 may remain functional, or they may further divide to produce more meiospores. ठीक है, the haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte. For example, many algae such as Volvox, Spirogera and some species of Chlamydomonas. ठीक है, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पढ़ा हमने. देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट photosynthetic and independent phase of the plant in case of diplomatic life cycle, whereas the gametophytic phase in this case is represented by a single to few celled haploid gametophyte. For example, gymnosperms and angiosperms जो हैं इनमें diplomatic life cycle होती है. ठीक है ना. Then third type is haplodiplomatic life cycle. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल. कौन सी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स आर डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलाइड आर इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनकोरेज एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, हाँ. In pteridophytes, the diploid sporophyte is the dominant independent photosynthetic and vascular plant body. It alternates with the multicellular saprophytic or autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte. ठीक है, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polysiphonia, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ठीक है, फ्यूकस विच इज एन एल्गा इज डिप्लॉन्टिक. फ्यूकस जो कि एक एल्गा है ये डिप्लॉन्टिक है. ठीक है ना. बहुत सारे एल्गा जिनरा है वो हैप्लॉन्टिक होते हैं. ठीक है, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया. ठीक है ना, तो वो क्या हैं? वो हैं हैप्लॉन्टिक. ठीक है, जो कैल्प्स हैं KELPS. ठीक है, कैल्प्स जो हैं ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. ठीक है, और फ्यूकस जो कि एक एल्गा है ये डिप्लॉन्टिक है. ठीक है, हाँ. तो अब हम थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं जो प्लांट ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है, हाँ, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. एक थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्मी के बारे में और एंजियोस्पर्मी के बारे में. ठीक है ना.
पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं इसका किंगडम प्लांटी का, ठीक है ना। किंगडम प्लांटी को हम दो में अगर डिवाइड करें, क्रिप्टोगैमी और फेनिरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में वो प्लांट्स जिनमें सीड नहीं होते हैं, ठीक है, और फेनिरोगैमी में वो प्लांट्स जिनमें सीड होते हैं। तो अगर क्रिप्टोगैमी जिनमें सीड्स नहीं होते हैं इनको डिवाइड करें, वो हम करेंगे किसमें, 3 क्लासेस में, मतलब 3 इसके ग्रुप बनाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है, विच आर विदाउट सीड्स, ठीक है। और ये आगे क्रिप्टोगैमी में। फेनिरोगैमी में आगे सीड वाले, उसमें आ गया जिम्नोस्पर्मी, ठीक है, जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं, और एंजियोस्पर्मी जिसमें जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो क्रिप्टोगैमी की पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसमें थैलोफाइटा के बारे में, ठीक है ना। हाँ, थैलोफाइटा जो है, दीज आर सिंपलेस्ट प्लांट पोजेसिंग अनडिफरेंशिएटेड बॉडी कॉल्ड थैलस, ठीक है। हाँ, वास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन थैलोफाइटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल्ड नॉन जैक्टेड कॉल्ड गैमिटेंजिया। नॉन जैक्टेड होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, गैमिटेंजिया बोलते हैं, ठीक, थैलोफाइटा में। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इन एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, ठीक है। इनमें कोई सीड नहीं होता है, और इनमें एम्ब्रियो स्टेज भी नहीं होती है थैलोफाइटा में, ठीक है। हाँ, कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा में कौन कौन से आगे प्लांट, हाँ, इसमें जो एल्गी की आगे रोडोफाइसी रेड एल्गी, इसकी एग्जांपल आ गई पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफायरा एट्सेट्रा। और उसके बाद फियोफाइसी ब्राउन एल्गी भी आ गई, जैसे लैमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम एट्सेट्रा। और क्लोरोफाइसी भी, जैसे ग्रीन जिसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, वॉलवाक्स, यूराथ्रिक्स। तो ये एल्गी की क्लासेस जो हैं ये थैलोफाइटा में आ गई। तो ये क्रिप्टोगैमी गेम्स हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप देखते हैं क्रिप्टोगैमी में, वो आ गया ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है ये नॉन वास्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट होते हैं। डोमिनेंट फेस इनमें फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, ऑन विच डिप्लॉइड स्पोरोफाइट लिव्स एज अ पैरासाइट, ठीक है। हाँ, पैरासाइट की तरह रहता है ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, किसके ऊपर, ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है, ब्रायोफाइट के केस में। तो एग्जाम्पल, हाँ, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट। देन ब्रायोफाइट में होता है प्लांट बॉडी इज थैलोस और फोलियोस, ठीक है। ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स आर एब्सेंट, किसके केस में, ब्रायोफाइट के केस में। देन ब्रायोफाइटा में जो है वास्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हैंस ऑफन रेफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। देन ब्रायोफाइटा में जो है मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैकेटेड, एल्गी में नॉन जैकेटेड है ना, इसमें जैकेटेड, ठीक है। देन ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स 3 क्लासेस, हिपैटिकोप्सिडा लिवरवार्ट्स जैसे रिक्शा मार्केंशिया, एंथोसिरोटोप्सिडा हॉर्नवार्ट्स जैसे एंथोसिरोस, एंड ब्रायोप्सिडा मॉसिस मींस फनेरिया पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप क्रिप्टोगैमी का हो गया ये ब्रायोफाइटा। तीसरा ग्रुप आ गया क्रिप्टोगैमी का टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज जो है ये डोमिनेंट होता है, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होती है बॉडी, ठीक है ना। जो कि उसमें ब्रायोफाइटा में एब्सेंट है, ठीक है। देन टेरिडोफाइटा में देखते हैं गैमेटोफाइट इज स्मॉल, इनकॉन्स्पिकस एंड यूजुअली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हाँ, देन टेरिडोफाइटा में जो वास्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। जाइलम डज नॉट कंटेन वेसल्स एंड फ्लोएम लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। हाँ, जो इसमें मतलब जाइलम फ्लोएम होते हैं टेरिडोफाइटा में, इसमें जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइटा में नहीं होते। देन ये जो है मल्टी सेलुलर जैक्टेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी होती है। और टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस आती हैं। पहला आ गया साइलोप्सिडा जैसे साइलोटम, देन लाइकोप्सिडा जैसे सेल्जिनीला लाइकोपोडियम, देन स्फेनोप्सिडा जैसे इक्विसिटम, एंड टेरोप्सिडा जैसे डायोप्टेरिस एंड टेरिस। तो ये तीसरा ग्रुप था किसका, क्रिप्टोगैमी का, टेरिडोफाइट। अब हम पढ़ते हैं फेनिरोगैमी में, जिसमें पहला ग्रुप आ गया जिम्नोस्पर्मी मीन्स प्लांट्स विद नेकेड सीड्स, ठीक है, कोई सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो ये जिम्नोस्पर्मी जो हैं इनमें फ्लावर्स आर एब्सेंट, इनमें कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स विद इन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो दीज स्पोरोफिल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोन्स आर स्ट्रोबिली, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कोन्स और स्ट्रोबिली की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, अरेंज। देन सीड्स आर नेकेड मीन्स डू नॉट अकर इनसाइड फ्रूट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में।
देन वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, जाइलम जनरली लैक्स वेसल्स, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन जाइलम में जनरली वेसल नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। देन जिम्नोस्पर्म इंक्लूड 4 क्लासेस, ठीक है, साइकाडोप्सिडा फॉर एग्जांपल साइकस, देन जिंकोप्सिडा फॉर एग्जांपल जिंको बाइलोबा, then third is Coniferopsida for example Pinus, and fourth is Gnetopsida for example Gnetum, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप है इसका फेनिरोगेमी के अंडर आता है एंजियोस्पर्मी, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है, इनमें फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्मी। हाँ, ये मोस्ट हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सीड्स आर प्रोटेक्टेड इन द फ्रूट्स, वास्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, जाइलम कंटेन वेसल्स, ठीक है। हाँ, दिस एंजियोस्पर्मी इंक्लूड्स 2 क्लासेस, मोनोकाटिलिडोनी मीन्स जिसमें मोनोकाट आ गया, फॉर एग्जांपल वीट, ओनियन एटसेट्रा, ये मोनोकाट है, ठीक है। और डाइकाटिलिडोनी दूसरी क्लास जिसमें डाइकाट्स आते हैं, जैसे मैंगो, पी, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट अभी किसी एग्जाम में भी आया था कि मैंगो क्या है, मतलब डाइकाट है मोनोकाट, तो याद रखना मैंगो जो है ये एक डाइकाट प्लांट है, पी जो है ठीक है ये भी डाइकाट है, लेकिन जो वीट है और ये प्याज, ऑनियन, ये मोनोकाट्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम को तकरीबन 132 MCQ नहीं मतलब कि बहुत ज़्यादा MCQs पढ़ेंगे, कोई तकरीबन 150 के आसपास, ठीक है, 160 के आसपास MCQs पढ़ेंगे। तो आप उस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।